الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سوچ سوالی کر جاتے ہیں، آنکھیں خالی کر جاتے ہیں، دانش چھوڑ کے جانے والے صبح کالی کر جاتے ہیں۔ لے گئے وہ ساتھ ساری زندگی کی رونقیں، دل کا یہ عالم ہے ان کے روٹھ کر جانے کے بعد۔ جس طرح دیہات کے اسٹیشنوں پہ دن ڈھلے، ایک سکوت مزمحل گاڑی گزر جانے کے بعد۔ مار واجد صاحب کے والد محترم کے دعائے مغفرت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ مرحومین کا یہ شرعی حق ہوتا ہے، اخلاقی حق ہوتا ہے کہ زندہ رہنے والے ان کے پردہ کر جانے کے بعد ان کو دعائے مغفرت میں یاد رکھیں۔ اخلاقی حق اس لیے ہوتا ہے کہ مرحومین ہماری دنیا بنا جاتے ہیں، ہمارا وجود، ہماری ذات، ہماری شناخت، ہماری پہچان، ہماری تعلیم، ہماری تہذیب، ہماری چھت، ہمارے مکان، یہ سارے مرحومین کی محنتیں ہوتی ہیں۔ اور شرعی اعتبار سے اس لیے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زندہ رہنے والے مرنے والوں کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ مرنے والے موت کی وادی عبور کرنے کے بعد 3 مرحلوں سے گزر جاتے ہیں۔ فرزدق بنو امیہ کے دور کا ایک شعر ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ پایا، اس کی بیوی فوت ہوئی، قبرستان میں کھڑا تھا، بیوی کی ابھی تجہیز تکفین نہیں ہوئی تھی۔ تو حسن بصری نے پوچھا، تیری بیوی 3 مرحلے عبور کر گئی ہے، تو نے اپنے لیے کیا سوچا ہے؟ فرزدق کہنے لگا، میری بیوی 3 مرحلے کون سے عبور کر گئی؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمانے لگے، تابعی ہیں، سید التابعین ہیں، 21 ہجری میں مدینہ میں فوت ہوئے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا دودھ پیا تھا، گھٹی ان کو سیدنا فاروق اعظم نے دی، مقام مدینہ ملا، دودھ سیدہ ام سلمہ کا ملا، اور سیدنا حسن بصری مشہور ہو گیا۔ فرزدق سے کہنے لگے، تیری بیوی جو پہلا مرحلہ عبور کر گئی ہے وہ ہے ملک الموت کا دیکھنا۔ ہر آدمی کو موت کے وقت ملک الموت 2 روپ میں سے ایک روپ میں نظر آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا ملک الموت سے کہ کسی نافرمان کی معصیت زدہ کی جب روح قبض کرتے ہو تو آپ کی کیا شکل ہوتی ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام 2 لاکھ انبیاء میں سے 5 جو ٹاپ کے انبیاء ہیں، جن کو قرآن کے زبان میں دینی لٹریچر میں اولو العزم کہتے ہیں، ان 5 انبیاء میں سے ایک ہیں، 4000 نبیوں کے باپ ہیں۔ معراج کی شب جتنے انبیاء آپ کو ملے، 7 آسمانوں پہ 8 نبی، ہر نبی نے کھڑے ہو کر استقبال کیا ماں سوائے ابراہیم علیہ السلام کے، وہ بیٹھے رہے۔ تو آپ نے پوچھا جبریل سے، یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کے باپ ابراہیم ہیں۔ پھر آپ جھکے بیٹھے، پیار لیا، ابراہیم علیہ السلام نے فلائیں کس پاس کی، خوش آمدید کہا، ان کے نام پہ پوری صورت ہے۔ 2 لاکھ انبیاء میں سے 5 جو ٹاپ کے انبیاء گنے جاتے ہیں، جن کو وہ ہیں۔ یہ گزارش کی ملک الموت سے کہ نافرمان کی روح قبض کرتے ہو تو کیا شکل ہوتی ہے؟ اب ملک الموت کہنے لگا کہ آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، لیکن آپ میری اس شکل کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ضد کی تو انہوں نے دکھائی، تو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو فرمانے لگے، مرنے والے نافرمان کو مرنے کے بعد آخرت کے مراحل میں کوئی اور بھی سزا نہ ہو، ملک الموت کا اس شکل میں دیکھ لینا کافی سزا ہوتی ہے۔ تو حسن بصری کہنے لگے فرزدق سے، تیری بیوی اس مرحلے سے گزر گئی۔ کا دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر مرنے والے کے ساتھ موت کے وقت فرشتوں کے ڈائلاگز ہوتے ہیں، مکالمہ جات ہوتے ہیں۔ موت کے وقت 2 فرشتے آ کر حدیث پاک میں آتا ہے، پوچھتے ہیں کوئی خواہش، کوئی تمنا، کوئی مرنے والو، اے ہو، بی ہو، سی ہو، فجی میں ہو، کینیڈا میں ہو، ناروے میں ہو، ڈنمارک میں ہو، پہلی صدی کو، آج کی صدی کو، ایجڈ ہو، جوان ہو، ہر فرشتہ مرنے والے سے پوچھتا ہے کوئی خواہش، کوئی تمنا، کوئی ڈیزائر۔ تو مرنے والا جو جواب دیتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، ایک گزارش ہے، ملک الموت، یہ کل آپ بھی کریں گے، میں بھی کروں گا،
अभी जो मैं कह रहा हूँ ये थ्योरी है, कल मेरा और आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो मरने वाला एक ही ख्वाहिश कहता है, लौला अखरतनी इला अजरिन करीब। कोई ऐसी सूरत है कि आई हुई मौत एक थोड़ी देर के लिए टल जाए। गले के घुंघरू बजने लग गए, पिंडलियाँ टकरा गईं, हाजिर गायब हो गया, गायब हाजिर हो गया, आंखों के वाइपर रुक गए, आदमी मायूस हो गया, मौत की पाइपलाइन में चला गया, बिखराव की जद में आ गया, जल्जले जाग उठे, वजूद टूट फूट की जद में आ गया, मायूसियों के बादल बरसने लगे। उस वक्त कहता है कोई तरीका कि मौत आई हुई थोड़ा सा दूर हो जाए। ये डायलॉग्स हो रहे होते हैं। तो आने वाले फरिश्ते पूछते हैं कितनी देर डिले कर दें, कितनी देर मौत को दूर कर दें। तो इसको उम्मीद लगती है, ये हसरत से कहता है एक दिन दूर कर दो, सोमवार को है तो मंगल को कर दो, जुमे को है तो हफ्ते को कर दो। फरिश्ते कहते हैं अगर एक दिन मौत ताखीर से कर दें तो एक दिन में क्या करेगा? कोई टाइम टेबल तो होगा, कोई फ्रेम वर्क तो होगा, क्या करेगा? तो कुरान मजीद में जवाब आता है, वो कहता है फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, ज़कात दूंगा और नेक लोगों की कंपनी इख्तियार करूंगा। बच्चा बैठ जाओ, अब बैठ जाना, अपना दोबारा जाना। वो कहते हैं सारी हमें एक दिन के डिले की इजाज़त नहीं है। ये बातें कुरान की हैं, कोई तारीख कुओं से उठने वाली आवाज़ें नहीं हैं। कुरान के चश्मे साफ़ी की पाकीज़ा ताकतवर उजली बातें हैं। फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, मैं ज़कात दूंगा इब्ने अब्बास के बकौल, और पारसा लोग, अहलुल्लाह लोग, अहले नज़र लोग, अहले ख़बर लोग, दीनदार लोग, मार्फत रखने वाले लोग, उनके साथ कंपनी इख्तियार करूँगा। फरिश्ते कहते हैं हमें डिले की इजाज़त नहीं है। तो फिर मायूसों को कहता है दिन न सही 7 ही कर दो, एक घड़ी ही कर दो। वो कहते हैं अगर एक घड़ी कर दें तो क्या करोगे? तो ये फिर करता है फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, ये करूँगा। वो कहते हैं नहीं, हम एक घड़ी भी ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, हम एक घड़ी भी आगे पीछे नहीं कर सकते। जब ये ख्वाहिशात के बाद मायूस होता है तो एक फरिश्ता दूसरे से कहता है इसकी ज़िंदगी के माह साल को दिनों में तब्दील करके बताओ, इसने कितने दिन ज़िंदगी के गुजारे ज़मीन के सीने पर। वो बता देता है 13,950 दिन, मोर और लेस। वो कहते हैं इतने दिन आपने गुजारे, सेहत थी, हयात थी, अकल था, शऊर था, विजडम थी, दानिश थी, ताल्लुक़ था, तारुफ था। इतने दिनों में अगर तो अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका, एक दिन में क्या करेगा? फिर वो कहता है एक साथ जो 20 या 22 मिनट की होती है उलमा के करीब, तो फिर वो फरिश्ता कहता है इसके सालों को, महीनों को, दिनों को, घंटों में, मिनटों में तब्दील करके दो, तो बेशुमार सातें हो जाती हैं। तो हसन बसरी कहने लगे फरजदक से, तेरी बीवी ये फरिश्तों के मुकालमा जात से भी गुजर गई। तीसरा मरला मरने वाले का रूह का निकलना होता है। इंसानी वजूद पे आने वाली आफतें और मुसीबतों में सबसे बड़ी मुसीबत रूह का निकलना होता है। 6 फुट का आदमी साउंड स्लीप ले रहा होता है, पाँव की छोटी उंगली की जड़ में एक चींटी आके 2 दांतों को दबा देती है, कितना आदमी बेकल होकर उठ बैठता है। अब 6 फुट में चींटी कितनी होगी, होंठ कितने होंगे, उसके बीच में सुरंज कितनी होगी, तो कितनी बेकली और इस्तराबियत से 6 फुट का आदमी ख्वाबों में पड़ा, साउंड स्लीप ले रहा, उठ जाता है। तो जो आदमी एक चींटी के मुंह में निकलने वाले सुरंज का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, पूरी रूह जब निकाली जाती है तो मत पूछो। इसलिए हदीस पाक में आता है मरने वालों को ये ना कहो कलमा पढ़ो, इसलिए कि शदीद टूट फूट होती है, शदीद बहरान होता है, ज़लज़ले जाग रहे होते हैं, आंधियाँ चल रही होती हैं, हवास ख़त्म हो जाते हैं, हाजिर गायब हो जाता है, जहन की मेमोरी सारी डिलीट हो जाती है, आदमी बेबस हो जाता है, लागिर चूज़े की तरह कांपना शुरू हो जाते हैं। सरदारी, नवाबी, खान, मारपना, चौधरी, MP, ये सारी चीज़ें जिस तरह तेज़ बारिशें कच्ची दीवार की सफ़ेदियों को उतार देती हैं, दुनिया के सारे टाइटल को मौत का झटका उतार के राख कर देते। तो वो कहने लगे मैंने तो कुछ तैयार नहीं किया। तो कहने लगे वो जाने वाला गुजर गया, तुम तैयार करो अपने आप को। मरहूमीन का हक होता है कि हम उनको दुआए मग़फ़िरत में याद रखा करें। हदीस पाक में आता है, मुस्लिम की रिवायत है, मरने वाले ज़िंदा रहने वालों की तरफ से दुआए मग़फ़िरत का यूं बेकली के साथ, इज़्तिराबियत के साथ, सिमाबियत के साथ, बेचैनी के साथ, दुखों के साथ, उम्मीदों के साथ इंतज़ार करते हैं, जिस तरह डूबने वाला डूबते हुए एक तिनके को शहतीर समझकर हाथ डालता है कि शायद बच जाऊं।
آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ہماری دیواریں جہاں سے یہ سیلاب ٹکرائے گا. بی شور کوئی بھی دنیا میں آدمی ایسا نہیں ہے جو اپنی ہمت طاقت کے بل بوتے پر موت کے سیلاب کو روک سکے. آج نہیں تو کل ہم نے جانا ہے. امام قرطبی نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ واقعہ میں عرض کرتا ہوں، اس میں اب بے شمار سبق ہے میرے آپ کے لیے. امام قرطبی کہنے لگے بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی کے پاس ملک الموت ہے اور کہنے لگے تیاری کرو، امانت واپس کرو. نبی کہنے لگے آنے سے پہلے بتلا دیا کرو تاکہ آدمی پیوریفائی ہو جائے، تیار ہو جائے، تطہیر کر لے، پاکیزگی کر لے، باطن کو دھو لے. ایٹ ونس آ جاتے ہو، اچانک آ جاتے ہو، آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو ملک الموت کہنے لگے سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں، لیکن لوگ ہماری بات پہ کان نہیں دھرتے. ہم میسنجر بھیجتے ہیں، پیمبر بھیجتے ہیں، قاصد بھیجتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، کاشن دیتے ہیں، علامات بھیجتے ہیں، لیکن لوگ ہماری بات سنتے نہیں. تو نبی کہنے لگے وہ کون سی علامات ہیں جو آپ مرنے والوں کو مرنے سے پہلے بھیجا کرتے ہو؟ تو کہنے لگے 4 علامات ہوتی ہیں، 4 پیمبر ہوتے ہیں، 4 قاصد ہوتے ہیں جو ہم بھیجتے ہیں کہ تیاری کر لو، ہم آ رہے ہیں. تو ملک الموت نے جب یہ بات کی تو نبی کہنے لگے وہ 4 علامات کون سی ہیں؟ تو ملک الموت کہنے لگا سب سے پہلے آدمی کے جسم کے اندر کے اعضاء کو مارنا شروع کرتے ہیں. آدمی کا وجود ایک فیملی ہے جس میں دانت، آنکھ، ناک، کان، دل، گردہ، بال، کھال، پھیپھڑے، یہ میرے جسم کی فیملی ہے. ہم آدمی کی فیملی ممبران کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. ایک آدمی کا دانت گر گیا تو دانت مر گیا، بال سفید ہو گئے تو سیاہ بال مر گیا، ہاتھوں میں راشا آ گیا. اچھا یہ میرے لیے پورے مجمع کی طرف سے کافی ہوگا، اور کوئی نہ ہے؟ تشریف رکھیں، اور کوئی نہ ہے جی. تو آدمی کے فیملی ممبران جب آدمی کے وجود کے اعضاء مرنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لو ملک الموت دائیں بائیں آنا شروع ہو گیا. جسم کا کوئی حصہ اگر بیکار ہو جائے، شوگر ہو جائے، دانت گر جائیں، راشا آ جائے، کمر میں خم آ جائے، آنکھوں پہ گلاسز آ جائیں، تو آدمی کو تیار رہنا چاہیے کہ جسم کی فیملی کے اعضاء کی موت کا سلسلہ شروع ہو گیا. لیکن لوگ اس کا علاج کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ملک الموت نے دستک دی ہے، شکاری شکار کے قریب تر ہو رہا ہے، منڈلانا شروع کر چکا ہے. دوسرا میرا قاصد یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے دوستوں کو مار دیتا ہوں، یک لخت یک مشت پوری فیملی کو اٹھا لیتا ہوں. ایک آدمی کئی فیملی ممبران رکھتا ہے، جیسے میں نے کہا دل، گردے، بال، کھال، پاپ، پھیپھڑا، آنکھ، ناک، کان، پوری فیملی پر مشتمل دوست مر جاتا ہے. لوگ تعزیت پہ جاتے ہیں، غسل میں جاتے ہیں، جنازے میں جاتے ہیں، تجہیز کرتے ہیں، تکفین کرتے ہیں، تدفین کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ مر جانے والا دراصل ملک الموت کی طرف سے ایک انڈیکیشن ہے، علامت ہے کہ اب تم تیار ہو جاؤ. پھر جب اس پہ بیدار نہیں ہوتے تو پھر ہم تیسرا کاشن یہ بھیجتے ہیں کہ اس کے رشتہ داروں میں سے کسی کو مار لیتے ہیں. چچا مر گیا، ماموں مر گیا، خالو مر گیا، پھوپھا مر گیا. وہ اس کی آخری رسومات میں بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن ان کی موت کے طریقے بتاتے ہیں، شوگر تھی، کینسر تھا، بلڈ فلاں تھا، مر گیا. لیکن جو اصل ہدف ہوتا ہے کہ یہ تیرے رشتہ دار کا مرنا تیرے گرد گھیرا تنگ کرنے کی نشانی ہے. اس پہ بھی جب وہ نہیں جاگتے تو پھر ہم اس کے گھر کے اندر کے فرد کو لے لیتے ہیں. باپ فوت ہو گیا، جیسے مارواجد صاحب کے والد محترم کا انتقال ہوا، ماں فوت ہوگی، بیوی فوت ہوگی، بیٹا فوت ہو گیا، تو یہ 4 پائی باپ کی تھی، یہ 4 پائی ماں کی تھی، یہ کمرہ ابو کا تھا، یہ کمرہ بیٹے کا تھا. گھر کے اندر ایک کو بند کر لو، گھر کے اندر ہم لے لیتے ہیں. جب گھر کے اندر لے لیتے ہیں اور پھر بھی نہیں جاگتا تو ملک الموت کہنے لگے وقت کے نبی سے آپ بتائیں جب میں نے جسم میں موت ڈالی، دوستوں پہ موت ڈالی، رشتوں پہ موت ڈالی، قریبی رشتوں پہ موت ڈالی، اس سے زیادہ میں جگانے کا علامت کا کیا ہے، لوگوں کو اطلاع کیسے کروں؟ میرے نزدیک یہ 4 بڑی اطلاعات تھیں، لوگ اس پہ بھی نہیں جاگتے، تو میں پھر مزید کیا کروں؟ آپ مجھے کوئی طریقہ بتائیں جس سے میں جھنجھوڑوں، ہلاؤں تاکہ وہ جاگ جائیں. تو نبی کہنے لگا اپنی حجت پوری کر دی ان کو جگانے کی. پھر ملک الموت کہنے لگے وہ بات جو میں آپ کے لیے اور اپنے لیے عرض کرنے لگا ہوں. ملک الموت کہنے لگے جی کہ وجہ کیا ہے، میری ان اطلاعات پہ یہ بیدار کیوں نہیں ہوتے؟ جب جسم کا عضو مر گیا، دور کا دوست مر گیا، دور کا رشتہ دار مر گیا، گھر کا رشتہ دار مر گیا، پھر یہ بیدار کیوں نہیں ہوتے؟ یو ٹرن کیوں نہیں لیتے؟ برائیوں کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ نیکیوں کو کیوں نہیں کرتے؟ نمازوں کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے؟ پاک زندگی کیوں نہیں لیتے؟ جب اتنی علامات ہو جاتی ہیں تو پھر یہ اپنی زندگی کو بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ میری بات پہ میرے قاصد کے، میرے پیغمبر کو لیتے کیوں نہیں؟ تو نبی کہنے لگے وہ نشئی ہوتے ہیں. ملک الموت نے کہا کہ میری بات کو لیتے کیوں نہیں؟ تو نبی کہنے لگے نشے میں ہوتے ہیں.
मलकुल मौत कहने लगा कौन सा नशा होता है जिसकी बिना पर वो इतने बड़े काशन, इतनी बड़ी अलामात, इतने बड़े झटके, इतने बड़े जल्जले, इतने बड़े रेड जोन में धकेल देना, वो नशा कौन सा होता है? तो नबी कहने लगे जवानी का नशा, ज़िंदगी का नशा, माल का नशा, पैसे का नशा, ओहदे का नशा, रकबे का नशा, स्टेटस का नशा, बिरादरी का नशा, जत्थे का नशा। ये वो नशे होते हैं जिन नशों में बदमस्त होकर तेरी इन आवाज़ों के ऊपर कान नहीं धरते। मलकुल मौत कहने लगे कोई तरीका है कि नशे से निकल जाएं, गफलत में ना मारे जाएं? तो नबी कहने के तरीके दो हैं, एक तेरे पास है, एक मेरे पास है। इन लोगों को नशे से निकालने के लिए तरीके दो हैं, एक मलकुल मौत से फरमाने लगे तेरे पास है, एक मेरे पास है। कहने लगे मेरे पास कौन सा है? कहने लगे जब तू शारक पे अंगूठा रख देता है तो नशे दूर हो जाते हैं, हर आदमी जाग जाता है। जब पता चल जाता है कि अलविदा का वक्त आ गया, सारा दोस्त, सारी PR, सारे डॉक्टर, हर तरफ जवाब हो जाता है, एम्बुलेंस से चलती हैं, हूटर बजते हैं, डॉक्टर आते हैं, इमरजेंसी टीम खुल जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता चेहरे पे मायूसी, पीछे आंचल भीग जाते हैं, बकरे ज़बा होते हैं, दुम्बे ज़बा होते हैं, दुआएं होते हैं, मदरसों में मिन्नतें होती हैं। लेकिन एक वक्त आता है कि जिस्म की सुई चलते चलते टक टक करते आखिरी मंजिलों के आ जाती है। जात सकरतुल मौत बिलहक़ ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद। आ गया वो वक्त, ये कह रही है बिस्तर गम की हर शिकन, तोड़ा है जिसने दम बड़ा बेकरार था। फिर वो वक्त आ जाता है, जिस्म टूट फूट की जद में आता है, तो उस वक्त वो समझ जाता है कि अब वक्त आ गया, अब बचने की उम्मीद कोई नहीं। तो कहने लगे एक तरीका इनको नशे से निकालने का ये है कि जब तू अंगूठा रखता है तो इनकी आंखों से सारे पर्दे उठ जाते हैं। हारून रशीद बनु अब्बास का 5वां बादशाह, बनु अब्बास की हुकूमत की अंगूठी का नगीना, खूबसूरत बादशाह, 23 साल बादशाह रहा। 170 हिजरी में तख्त नशी हुआ, 193 हिजरी में आकर मलकुल मौत ने शारक पे अंगूठा रख दिया। जब अंगूठा रखा तो उसको अंदाज़ा मैं तो बादशाह नहीं, तख्त नशीनी से खाक नशीनी का वक्त आ गया। फिर उसने अपने बेटे अमीन को बुलाया कि लो बेटा, आंख से पर्दा खुल गया। इकबाल ने इसको नज़म लिखी है कि हारून ने कहा वक्त रहील अपने पिसर से, जाएगा कभी तू भी इसी राह गुजर से। पोशीदा है काफिर की नज़र से मलकुल मौत, लेकिन नहीं पोशीदा मुसलमान की नज़र से। 193 हिजरी में जब हारून के गर्दन पे या शारक पे मलकुल मौत ने रखा अंगूठा तो वो जाग गया, लेकिन उस वक्त का जागना बेकार हो चुका था। तो एक नशे से निकालने का तरीका मलकुल मौत का आके झटका देना, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं, उस वक्त की तौबा कबूल कोई नहीं, उस वक्त का मिन्नत कबूल कोई नहीं, उस वक्त की आजी कबूल कोई नहीं। तो मलकुल मौत कहने के दूसरा तरीका क्या है? कहने का दूसरा तरीका ये है कि आपकी मेरी बातें सुने। नबी कहने के दूसरा तरीका मेरे पास है कि मेरी बातें, मेरी तालीमात, मेरे इरशादात, मेरी कंपनी, मेरी साबित लें तो नशे से निकल जाते हैं। मैं और आप इस वक्त ज़िंदगी के उस मरले में हैं जिस ज़िंदगी के मरले में हारून रशीद 170 हिजरी में जा चुका था। आज नहीं तो कल वो 2021 होगा या 22 होगा, जनवरी होगा या फरवरी होगा, सोमवार होगा या मंगल होगा, दिन होगा या रात होगी, 4 बजे होंगे या 6 बजे होंगे, घर होगा या अस्पताल होगा, कौमा होगा या होश होगा, लेकिन वक्त आएगा ज़रूर। इसलिए कि अल्लाह का वादा है ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। मरने से पहले अगर हम एक काम कर लें तो मौत को ऐब नहीं। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा। एक काम अगर मरने से पहले कर लें, मौत से बड़ा कायनात में मुसलमान के लिए तोहफा कोई नहीं। एक काम कर लें, वो ये क्या है कि जिस काम के लिए परवरदिगार ने मुझे और आपको दुनिया में भेजा, इज़्ज़त दी, सलाहियत दी, आज़ाद दिए, जवानी दी, कलमा दिया, कुरान दिया, ईमान दिया, अखलाक दिया, इस्लाम दिया, जिसके लिए बेशुमार खरबा खरब नेमतें दी, वो काम कर लें तो मौत से बड़ा जिस काम के लिए दुनिया में आए वो काम कर ले तो उसमें सेटिस्फेक्शन होती है, इत्मीनान हो जाता है। मैं इस काम के लिए लाहौर गया था, काम हो गया, बहुत इत्मीनान में आ जाता है। दुनिया में किस काम के लिए है? तो कुरान मजीद की 6 लफ्जी आयात पर दुनिया का सबसे कीमती सवाल का जवाब है, वो मैं आपकी खिदमत में रख कर अपनी दुआ कर लेता हूँ। दुनिया में सबसे कीमती सवाल ये है कि मैं दुनिया में क्यों आया, और वो जो फलसफियों से हल न हुआ और नुक्तवरों से खुल न सका, वो राज कमली वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। दुनिया के बड़े बड़े लोग, थिंक टैंक, दानिशवर, फिलासफर जिस सवाल का जवाब न ढूंढ सके कि मैं दुनिया में क्यों आया, आमना के लाल उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी अरब की ज़मीन जिसने सारी हिला दी। एक आके आपने जवाब दिया और दुनिया के इंसानों के महंगे तरीन सवाल का जवाब दिया कि तुम कहते हो दुनिया में क्यों आए, तो हम तुम्हें बताते हैं दुनिया में क्यों आए। तो दुनिया में आने का जो जवाब दिया कि वो ये था, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। दुनिया में ज़मीन भी बनाओ, माल भी बनाओ, ओहदे भी लो, मकान भी लो, सब कुछ लो, लेकिन एक काम करो कि अबदियत का ताज पहन कर अल्लाह के पास पहुँच जाओ।
ابدیت کسے کہتے ہیں؟ اب ابدیت ایک دینی ادب کا لفظ ہے، ہم میں سے شاید 99% لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ ابدیت کسے کہتے ہیں۔ ابدیت 5 چیزوں کا نام ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ دنیا میں ابدیت کا تاج پہن کے آ جاؤ، تم خانہ بدوش ہو کے مرو، تم محل نشیں ہو کے مرو، تم ملیشیا پہن کے مرو، تم کرنڈی پہن کے مرو، تم پہلے گریڈ میں مرو، تم 22ویں گریڈ میں مرو، تم غریب محض ہو کے مرو، تم کھرب پتی ہو کے مرو، تم انگوٹھا چھاپ ہو کے مرو، تم پوسٹ ڈاکٹریٹ ہو کے، جو بھی مر جاؤ، لیکن اگر ابدیت کا تاج پہن کے آ گئے تو کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ پھر تم زندہ ہو کے رہ جاؤ گے۔ ابدیت کیا ہے؟ ابدیت ہے 5 چیزوں کا نام کہ 5 کام کر لو ابدیت تیار ہو جائے گی۔ جس طرح ایک آدمی چائے بناتا ہے تو اسے پوچھا کہ چائے کی ریسیپی کیا ہے، تو وہ کہے کہ چائے چینی سے، دودھ سے، پتی سے، پانی سے بنتی ہے۔ ابدیت کا تاج، ابدیت کی پوشاک، ابدیت کا سہرا کیسے بنتا ہے؟ تو 5 چیزوں کے مل جائیں تو ابدیت بنتی ہے۔ سب سے پہلے ابدیت کے لیے ضروری ہے کہ یقینوں کی درستگی۔ وہ کیا ہے کہ کائنات میں کون کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے؟ تو دل کی دنیا سے آواز نکلے کہ کائنات کا خالق، مالک، رازق اکیلا اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ سیدنا علی کا ایک قول یاد آتا ہے اور بے ساختہ یاد آتا ہے، اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں میرے لیے پاسبل ہو تو سیدنا علی کا یہ قول چھپوا کر پرنٹ لگا کر ہر اس جگہ پہ آویزاں کر دوں جہاں انسانوں کی نگاہیں پڑتی ہیں، وہ بیڈ روم میں ہو، وہ ٹوائلٹ کے روپ میں ہو، وہ چوکوں کے روپ میں ہو، میرے بس میں ہو، چونکہ میں اس پاسبل نہیں ہے میرے لیے کہ اگر میرے بس میں ہو تو میں سیدنا علی کا وہ قول دہرا دوں۔ وہ کیا ہے؟ انہ لا یکون فی الارض شیء حتی یقضی فی السماء، لوگوں آسمان پہ جو منظور ہوتا ہے زمین پہ وہ ظہور ہوتا ہے اور وہ ضرور ہوتا ہے۔ اب اس جملے کی گہرائی کو دیکھیں، کتنی طاقت ہے، قوت ہے، یقین ہے، مضبوطی ہے، حمالیہ پن آ جاتا ہے۔ آدمی جی حضوری سے، جھکنے سے، بچنے سے، چاپلوسی سے، خوشامد سے نکل جاتا ہے اور آدمی سدرۃ المنتہا پہ چلا جاتا ہے۔ کیا کہ لوگوں آسمان پہ جو منظور ہوتا ہے زمین پہ وہ ظہور ہوتا ہے اور وہ ضرور ہوتا ہے۔ آسمانی فیصلے لیکن چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ سے ٹل نہیں سکتے۔ اللہ اگر عزت دے تو ذلت کوئی نہیں، دولت دے تو غربت کوئی نہیں، بلندی دے تو پستی کوئی نہیں، بیٹا دے تو بیٹی کوئی نہیں، علم دے تو جہالت کوئی نہیں۔ یہ پہلی چیز ہے ابدیت کے لیے کہ یقین درست ہو کہ کائنات میں کون کرتا ہے، تو یقین جانے کہ تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک اور ابتدائی شرق سے لے کر انتہائی غرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک اور چونٹی سے لے کر جبریل تک پوری کائنات پہ قبضہ، قدرت، بادشاہ، تسلط اکیلے اللہ کا ہے اور کوئی نہیں۔ ڈر، خوف، یہ سارے نکل جاتے ہیں۔ پہلی چیز ابدیت کی ہے، یقین رکھو کہ کوئی بھی کائنات کی مخلوق اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ دوسری چیز جس کے بغیر ابدیت تیار نہیں ہوتی وہ ہے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں۔ سیدنا علی کا پھر ایک قول یاد آتا ہے، ان سے کسی نے پوچھا، ایک آدمی دریا میں تیراکی کر رہا ہے، دریا بڑا گہرا ہے، لہریں بڑی خوفناک ہیں، بھنور بڑے سرکش ہیں، مگرمچھ پھرتے ہیں اور ہوائیں مخالف ہیں اور آدمی تھک گیا اور آدمی کے وجود پہ کپڑا بھی نہیں، تیرنے والے ننگے ہو کے تیرتے ہیں۔ تیرتے تیرتے اس کے ہوائیں مخالف ہو گئیں، لہریں سرکش ہو گئیں، بھنور جاگ گئے، مرنے کے قریب آ گیا تو اس کو سامنے نظر آیا کنارہ دور تھا، کنارے تک پہنچتے ہوئے سورج ڈوب جائے گا، عصر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ تو ایسی کریٹیکل سچویشن میں آپ فرمائیں کہ کیا اس آدمی پہ نماز فرض ہے؟ تو اولین آخرین کے علم کا مجموعہ رکھنے والا سیدنا علی فرمانے لگے، اس تیراک کو تیراکی کی خوفناک کیفیت میں علی ابن ابی طالب کے فتوے کے بقول نماز فرض ہے، نماز پہ معافی نہیں ہے۔ اس کیفیت میں نماز پہ جب آپ سوچیں نماز کی 13 شرائط میں ایک شرط بھی لاجک وائز تیرنے والا پوری نہیں کر سکتا، نہ کپڑا ہے، نہ قبلہ ہے، نہ رکوع ہے، نہ سجود ہے، نہ قیام ہے، نہ تشہد ہے، نہ سلام ہے، لیکن عالم تصور میں اللہ کو سامنے رکھ کر تخیلات کے جہان میں اللہ اکبر کہہ کر بندگی کے لیے سر جھکا دے، آسمان کا خالق ساری کمیوں کو پورا کر کے نمازیوں میں شمار کر دے گا۔ تو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں۔ اب غریب ہیں، امیر ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، ہاتھ اوپر باندھتے ہیں، نیچے باندھتے ہیں، چھوڑتے ہیں، لیو اٹ، ان باتوں کو چھوڑ دو۔ وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے، نشیمنوں پہ بجلیوں کا کارواں گزر گیا، چمن چمن روش روش، یہاں لہو وہاں لہو، میں کیا کہوں یہ حادثہ کہاں کہاں گزر گیا۔ اللہ ان چھوٹی باتوں کو نہیں دیکھتا کہ ہاتھ آدھا فٹ اوپر ہو گیا، آدھا فٹ نیچے ہو گیا، آدھا ہاتھ لمبا ہو گیا، ایسی بات نہیں ہوتی۔ آسمان کا خالق جانتا ہے کہ صدیوں قبل صفا کی چوٹیوں سے جو چشمہ بہا تھا وہ بہتے بہتے بھوانا میں آ کر اس میں بے شمار خارجی ملاوٹیں ہو گئی ہیں۔ میرے بندے ہیں، انہوں نے میرے محبوب کا زمانہ نہیں دیکھا، جبریل کو نہیں دیکھا، قرآن اترتے نہیں دیکھا۔ اگر ہاتھ 1 فٹ اوپر ہو بھی گیا تو وہ ان باتوں پہ پکڑ کر آدمیوں کو سزا نہیں دے گا۔ وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے، نشیمنوں پہ بجلیوں کا کارواں گزر گیا، چمن چمن روش روش، یہاں لہو وہاں لہو، میں کیا کہوں یہ حادثہ کہاں کہاں گزر گیا۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، آپ کی جو تحقیق ہے، آپ کا جو انداز ہے، آپ کا جو اسلوب ہے، پروردگار اس کو فیور دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ مکمل کر چکے تو جبریل علیہ السلام نے آ کے سلام کیا کہ اللہ کا گھر مکمل ہو گیا، کہ ہو گیا۔
जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कान में विस्परिंग की कि मैं आसमान से आ रहा हूँ। वही आ रही थी कि आज इब्राहिम जो मांगेगा अता कर दिया जाएगा। कबूलियत की तितलियां रक्स कर रही थी कि जो मांगेगा इब्राहिम अता कर दिया जाएगा। तो आप अंदाज़ा करें, बैतुल्लाह मुकम्मल हो चुका है, हतीम में इब्राहिम खड़े हैं, साथ इस्माइल खड़े हैं, उलुल अज़्म पैगम्बर हैं, और जिब्रील वही दे चुके हैं कि आज जो मांगोगे अता कर दिया जाएगा। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा आज जो मांगे मांग लें। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या मांगा? तो कुरान के बकौल रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रियती। अल्लाह मुझे पता चल गया जो मांगे मिल जाएगा, तो मुझे और मेरी औलाद को पक्का नमाजी बना दे। हसन बसरी का एक इरशाद है कि आसमान की दुनिया में लोगों के लिए सज़ाएं तय होती हैं, इसको हादसा कर दो, इसका बच्चा मार दो, इसका माल। लेकिन सबसे बड़ी पनिशमेंट क्या होती है? सबसे बड़ी सज़ा किसी शख्स के लिए आसमान की बारगाह में ये होती है कि इसकी जबीनों को अपनी हुजूर झुकने से महरूम कर दिया जाए। इकबाल कहता है तेरी सज़ा है नवाए सहर से महरूमी, मकाम शौक़ व सुरूर व नज़र से महरूमी। तो कभी कभी अगर बेनमाजी हैं तो अल्लाह से पूछा करें, या अल्लाह जिस जुर्म की सज़ा में मेरी पेशानी को अपनी अबदियत के हुजूर झुकने से तूने महरूम कर दिया, अल्लाह सज़ा बड़ी शदीद है, मुझे माफ़ फरमा दे। तो दूसरी चीज़ है 5 वक्त के नमाजी बने, जहाँ पढ़ें जैसे पढ़ें, हर एक के साथ पढ़ें, हर एक के पीछे पढ़ें, हर एक के साथ। ये कम नसीबी है हमारी कि फ़िरका वारियत की हवा इतनी तेज़ होगी। हमारे जंग का शहर है, वो कहता है नहीं गुसल दे फ़र्ज आंदे साहिब औलाद हैं, ला के तकड़ी तोलना है नूर हा यहा बशर। भाई तैनू कहें सालिस बनाया रब ते उसते दरमियाँ, आप वो अपनी मुकैसन तू तो पिंडा पाक कर। यानी हमारी बुनियादी चीज़ें वो पता नहीं, लेकिन इतनी नहीं गुसल दे फ़र्जान दे साहिब औलाद हैं, ला के तकड़ी तोलना है नूर हा यहा बशर। भाई तैनू कहें सालिस बनाया रब ते उसते दरमियाँ, आप वो अपनी मुकैसन तू तो पिंडा पाक कर। तो दूसरी चीज़ जिसके बगैर अबदियत नहीं होती, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करें। सफ़र में हैं, हज़र में हैं, घर में हैं, बहर हैं, जहाँ भी हैं, अल्लाह के हुजूर पूरी ज़मीन पाक है और अल्लाह के हुजूर सजदा करने की तौफीक मांगा करें। वुज़ू की मौका न मिले तो तयम्मुम की शरीयत ने मौका दे दिया। तीसरी चीज़ जिसके बगैर अबदियत का ताज तैयार नहीं होता वो ये है कि अपने आमद और ख़र्च को हलाल करें। हर आदमी जब कायनात में आता है उसको कमाना पड़ता है। हर आदमी के पास हलाल के ऑप्शन भी होते हैं, हराम के ऑप्शन भी होते हैं। हमारे यहाँ कम नसीबी से कुछ चीज़ों को तय कर लिया गया कि फ़लाँ शोबा, फ़लाँ प्रोफेशन, फ़लाँ हिस्सा ये हराम कमाने वाले हैं। हालांकि हराम का मौका हर एक को मिलता है, हलाल का मौका हर एक को मिलता है। मैं एक ऐसे पुलिस अफसर को जानता हूँ जो अक्सर महीने के आखिर पे मेरे से कर्ज लेता है कि हलाल से खाऊं तो गुजारा नहीं होता, हराम। तो पुलिस में भी हलाल वाले मिल सकते हैं, महकदों में भी हलाल वाले मिल सकते हैं। लिहाजा हर आदमी को अबदियत को पूरा करने के लिए अपने रिज़्क़ को हलाल करना चाहिए। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना होगा। घर में तशरीफ़ ले, बीवी से कहने लगे रोटी पकाओ, रोटी पकाई, पहला लुकमा तोड़ा तो कहने लगे रोटी में वो जायका नहीं है, टेस्ट नहीं है, फ्लेवर नहीं है। बीवी कहने लगे जिक्र के साथ, दरूद के साथ, तस्बीह के साथ मैंने अपना आटा गूंदा, कोई उसमें ऐसी प्रैक्टिस नहीं है जो कम हो चुकी हो। कहने लगे लुकमे में वो तासीर, वो जायका, वो जाज़बियत नहीं है। फिर बीवी कहने लगे अच्छा एक आज फ़र्क पड़ गया रोटी पकाते हो। कहने के क्या फ़र्क पड़ा? कहने के जब मैंने आटा गूंद लिया, आटा ठंडा हुआ, पकाने का वक्त है, प्लेथन ख़त्म हो गया था। आपका बेटा जो साले बिन अहमद बिन हंबल हैं वो जज हैं, काजी हैं, तो मैं फिर आपके बेटे के घर बहू में गई, बहू के पास गई कि आपके ससुर के लिए आटा ठंडा हो चुका, प्लेथन नहीं है। तो प्लेथन वहाँ से लेके कहने का अच्छा वो साले जज है, कहीं डंडी मार गया होगा। उसके प्लेथन ने अहमद बिन हंबल के ब्रिज के हलाल वाले आटे को भी मशकूक कर दिया। फिर फरमाने लगे ये रोटी मुझे ना देना, इसलिए कि मुझे हर रात आमना के लाल की ज़ियारत होती है। हराम कमाई वाले दिल के ड्राइंग रूम में आमना के लाल कभी भी अपना दीदार नहीं करवाया करते। फिर कहने लगे बीवी कहने लगे रोटियों का क्या करूं, 2 रोटी पक गई। कहने लगे कोई फ़कीर है तो दे देना, लेकिन देने से पहले कहना आटा अहमद के घर का, खुश का साले के घर का। अगर अहले नज़र हुआ, अहले दिल हुआ तो फ़र्क से पहचान जाएगा, समथिंग इज रॉन्ग इन द बॉटम। और अगर पेट का पुजारी हो, दस्तरखान का इमाम हो तो फिर खा जाएगा। 3-4 दिन गुजरे तो इत्तफाकन बीवी से पूछा रोटी का क्या बना? कहने के 3 फ़कीर वक्फे से आए थे, उन्होंने कहा अल्लाह के नाम पे कुछ दो। मैंने कहा रोटियां पड़ी हैं अहमद के घर में, जिसमें आटा अहमद के घर का, खुश का साले के घर का। वो कहने लगे हम तो नूर बसीरत तेज़ करने के लिए, अपने अंदर को उजालने के लिए, बातिन की ततहीर के लिए, जहन की प्योरीफिकेशन के लिए और अपने अंदर को नूरानी बनाने के लिए अहमद के घर से खैरात मांगते हैं। हम आटे रोटी के लिए नहीं आया करते। ये जो तूने वन डाल दी कि आटा अहमद के घर का, खुश का साले। तो तीसरी गुजारिश ये है कि मैं और आप अपनी रिज़्क़ और आमदन को हलाल करें। जिस आदमी का 90% लोग रिज़्क़ हराम किल्लत मालूमात की बिना पे नहीं खाते, किल्लत ईमान की वजह से खाया करते। हर आदमी को पता होता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है, लेकिन करता क्यों है? कमज़ोरी ईमान। चौथी चीज़ जिसके बगैर अबदियत तैयार नहीं होती और हमारा दुनिया में आने का मकसद पूरा नहीं होता वो ये है कि अपनी ज़ात से अज़ियतों की निश्तर जनी का काम छोड़ दें। अज़ियतों के तमाम निश्तर
मेरी रूह में उतार कर वो बड़ी मुरव्वत से पूछता है तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है। कोई आदमी सिख है, ईसाई है, यहूदी है, हिंदू है, जरतुश्त है, मजूसी है, उसका काम और अल्लाह का काम है। मुझे किसी के मसलकी इख्तलाफ के बिना पर, फ़िकी इख्तलाफ के बिना पर, सियासी इख्तलाफ के बिना पर गर्दन मापने का कोई हक शरीयत किसी रूप में देने को तैयार नहीं करती। समाइल पास करके हर एक को मिले, मुस्करा के मिले, वो जाने उसका रब जाने। अगर उसके अकायद हैं तो उसका अल्लाह का मामला है। मुझे रवादारी का हुक्म है, मोहब्बत का हुक्म है, प्यार का हुक्म है। कब्जी चेहरा किसी को अच्छा नहीं लगता। मैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए फोटो स्टूडियो के पास गया, बेसमेंट में तो स्टूडियो था एक आध मरले के अंदर। तो मुझे उसने कहा कंघी करें, मैंने कर लिया। उसने कहा कोट पहने, मैंने कहा गर्मी। उसने कहा सारे वकील नहीं पहनते। मैं चुप हो गया। मैंने कहा मैं गर्मी में कैसे पहनूं कोट, खुद खुदा का खौफ करो गर्मी। उसने कहा पहन लो। मैंने मुश्किल से कोट पहना। उसने कहा हंसो। मैंने कहा दीवारों को देख के क्या हंसो, दीवारों को देख के आदमी हंसता है किसी एक्शन रिएक्शन के बदले में। वो मुझे तकल्लुफ से कहे हंसे, मैं हंसी ना निकले। बिल आखिर मैंने उसके मुसलसल इंसिस्ट करने पर हंस पड़ा। जब मैं हंस पड़ा उसने फ़ोटो खींचा, उसने मुझे रिजल्ट दिया। मैंने कहा आपको ये कोड पहनाने का, मैंने हज के लिए तस्वीर लेनी थी लाइट ब्लू बैकग्राउंड के साथ, तो आपने मुझे हंसाया क्यों? कहने कि हंसते हुए चेहरे का फ़ोटो अच्छा होता है। तो लोग पूछेंगे फ़ोटो कहाँ से खिंचवाया, तो आप कहेंगे आकाश फोटो स्टूडियो से खिंचवाया। तो फिर अच्छे फ़ोटो के रिजल्ट से हमारे ग्राहक बढ़ जाया करते हैं। मैं सोचने लगा कि फ़ोटो स्टूडियो वाला भी कितना ज़हीन निकला। कायनात का मुसव्विर अपने स्टूडियो में मुस्कुराते हुए चेहरे पसंद किया करता है। यकीन जन्म मसला की बिना पे कब्ज़ वाले चेहरे, मुतनफ़िर चेहरे, टाइट चेहरे, तनाव वाले चेहरे कायनात का खालिक इनको पसंद नहीं करता। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा फरमाती हैं जब भी अल्लाह के महबूब घर में, ये मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, ये सुन्नत है, मुस्तकिल इसको संभालिएगा, आइली ज़िंदगी ठीक हो जाएगी, घर का निज़ाम ठीक हो जाएगा। आप अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं मोमिनों की माँ कि जब भी अल्लाह के महबूब घर में दाखिल होते थे हमेशा स्माइल पास करते थे, हमेशा मुस्करा के दाखिल होते थे। तो मुस्कराना अपनी फितरत सानिया बना लें, अपनी ज़ात से किसी को अजियत न दें। कोई गरीब है, कोई यतीम है, कोई मस्कीन है, कोई बीवी है। और आप अंदाज़ा करें आमना के लाल 8 हिजरी को फतेह मक्का के लिए तशरीफ़ लाए तो मदीना से जब निकले और एक जगह आती है, डेजर्ट है और बीच में जंगल भी आ जाते हैं। यहाँ शाम होगी, टेंटिंग हुई, कैंपिंग हुई, खैमे लगाए गए, किचन बनाया गया। आमना के लाल के जब खैमे लगाया गया तो आपने सामने देखा खैमे का कपड़ा उठाकर, तो ताहद नज़र साहबा नमाजें पढ़ रहे थे, रोज़े तैयारी कर रहे थे। फिर पिछला खैमे का कपड़ा उठाया तो आपने देखा कि जंगल की झाड़ियों के बीच में कुतिया डिलीवर हो चुकी है, 10-12 बच्चे हैं, पाँव फैलाया हुआ है और कुतिया बच्चों को फीड दे रही है। कुतिया के बच्चे माँ का दूध पी रहे हैं। अब ये कुतिया है, जंगल की है, छोटे बच्चे हैं, ब्लाइंड हैं उस वक्त, और माँ का दूध पी रहे हैं। तो आपने जमील बिन सुराका रज़ी अल्लाह साहबी को बुला के कहा मेरे खैमे के पास खड़े हो जाओ और किसी साहबी को मेरे खैमे की पुश्त पे खैमा न लगाने देना, माँ बेटों को तकलीफ होगी। अब ये माँ कौन है, बेटे कौन है, खड़ा किसको किया, खड़ा किसने किया, सोचते रहना इसके बारे तन्हाई में, देखते रहना दीवारों को शाम के बाद। अब अंदाज़ा करें कि आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुतिया और उसके बच्चों को फैसिलिटेट किया कि राहत दी। एक साहबी को खड़ा कर दिया कि माँ बच्चे दूध पी रहे हैं, अचानक को खैमा लगाएगा, लकड़ियाँ काटेगा, आग जलाएगा तो ये बिदक के बहर चले जाएंगे। तो जो नबी अपनी ज़ात से जंगल की कुतिया को अजियत देने का रवादार नहीं है, उस नबी के मानने वाले आज मसलक के बिना पे, फ़िरके के बिना पे, इख्तलाफात के बिना पे स्पीकरों के अंदर क्या अजियतों की कांटेदार फसल उगा चुके हैं, सोच के घिन आती है। मेरा एक दोस्त आलिम है, वो अपने एक आदमी को कह रहा था कि मेहरबानी क्या करो, आप उलमा की इज़्ज़त क्यों करो। कहने का अगर इज़्ज़त वाली उलमा कबीला होता तो उलमा एक दूसरे की इज़्ज़त न करते, अगर इज़्ज़त वाले होते तो उलमा इज़्ज़त करते। उलमा जिसकी इज़्ज़त न करें आवाम से कैसे कहा जाए। जितना उलमा को रगड़ देते हैं मसले की इख्तलाफ पर, उसकी वजह यह है कि उलमा का तबका मुआशरे के अंदर एक रिजेक्शन होकर रह गया। तो चौथी चीज़ यह है कि अजियत न दो। बीवी हो, क़यामत वाले दिन हुकूकुल इबाद में पहला सवाल ये होगा, ये हाजी है, ये नमाजी है, ये आबिद है, ये शब्बेदार है, लेकिन देखा यह जाएगा कि ये बीवी के साथ इसका सलूक कैसा था। पहला सवाल ये होगा हुकूकुल इबाद की कचहरी में। उस वक्त नवाबी, मखदूमी, सरदारी, चौधराटी, वडेरपन ख़त्म होगा और अल्लाह कहेगा किसी की बेटी को कलमे की बुनियाद पर घर ला के उसको जलील करने वाले मुझे जवाब दे कि ये तूने काम क्यों किया था। उस वक्त उसका अंदाज़ा होगा कि ये किसी की बेटी को, आज कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो छोटी छोटी बातों पर जलील हो जाती हैं, माँ बाप के घर से रुखसत होता है। कलमे की बुनियाद पर किसी की बेटी को, जब तेरी बेटी को तेरा जैसा दामाद मिलेगा फिर तुम्हें अंदाज़ा होगा कि किसी की बेटी को अजियत देकर उसके बूढ़े माँ बाप को किस तरह किस्तों में मार देने के मुतरादिफ होता है। बीवी को अजियत न दे, माँ को अजियत न दे। मैं अक्सर सुनाया करता हूँ, रावी के इलाके में माही गिरों को बयान करके मैं वापस फैसलाबाद पलटा तो रात के पिछले पहले पैर में एक बूढ़ी
बूढ़ी औरत का फ़ोन है। मुझे कहने के आप बयान करके आए थे। मैंने कहा हाँ। रावी में करके आए थे। हाँ। मलाहों को करके आए थे। हाँ। कहने के खाना आपने कहाँ खाया था? मैंने कहा माँ मुझे पता नहीं। कहने के भें पके हुए थे? मैंने कहा हाँ। कहने के वो ये पक्का सना है कि खाना तेरा मैंने पकाया था? मैंने कहा अच्छा। कहने के एक गुजारिश करनी है आपसे, किसी को बताना ना। मैंने कहा अच्छा नहीं बताता। कहने कि मैं हूँ बेवा, अकेला है, बेटा की है शादी, हमारे इलाके में होता है, दूध बनता है, खोआ रात को तैयार होती है, बर्फ़ी। मेरा बेटा रात को ईशा की नमाज के बाद पाव आधा पाव बर्फ़ी लेकर शापर में लेकर खब्बे पट के साथ छुपा कर दीवार के साथ रगड़ता और बीवी के कमरे में रख के मेरे पास आ जाता है। जब मैं उसको घर में दाखिल होते देखती हूँ मुझे पता चल जाता है कि ये मुजरमाना अंदाज से जो एंट्री कर रहा है, मुझे पता चल जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ करके आ रहा है, तो मुझे पता चल जाता है। आप मेहरबानी क्या करो, आप बयान करते रहते हो, लोगों को कहा करो पट्टा नाल बर्फी लुका के घर च न गया करो। मैं कि अम्मा हर इलाके दे पार्टी वखरे, बर्फियाँ वखरी, कड़मे ही वखरे, कद्दां वखरियां, दीवारें वखरी, मैं कहीं को नहीं समझावा। उस आगे तू गल कर छोड़ी कहानियां कान सोच वैसे अपने वो तुहानू पता लग गया भी केड़ा ये वारदात करन। आख्या यकीन जानो मावां थां मर जांदियां ने, असीं तुहाडे वास्ते समान लैके लुकाई नहीं आए तो तुसीं साथों लुका के लै वेंदे हो। मेहरबानी की तो करो, मावां कोई शै लुकाई ना करो। भुखी बैठी है मां तां बैठी रहे पर टबरी रज के खावे, नहीं भैन दा बोछण तां की होया, धी सूट तू सूट हंडावे, नहीं पुत्र दे कपड़े गेण दे विच बाबा पगड़ी नू तरसावे, जदा इतने फर्क लतीफ होवन किवें रहमत जातियां पावे। माओ को अजियत न दिया करो। माँ के अजीम होने के लिए माँ होना काफ़ी है। माँ फासिक हो, फाजिर हो, माँ फिर माँ है। बाप के अजीम होने के लिए बाप होना काफ़ी। बाप अनपढ़ भी हो तो पूरी जामे है, माँ अनपढ़ भी हो तो पूरी दारुल्लूम है, माँ ओपले थापरी हो तो भी तकदीर को बदलने का फ़न जानती होती है, माँ गरीब माज भी हो तो आसमान की बारगाह में अजीम तरीन हस्ती होती है, क्योंकि अल्लाह ने खुश होकर अपनी सबसे कीमती मखलूक जन्नत को माँ के कदमों के तले रख दिया। ऊंची आवाज़ से माँ को न बोला करें। माँ की आंखों के आंसू उम्र भर की इबादत को ऐसे बहा के ले जाते हैं जैसे मुँह जोर रेले छोटे छोटे बलबिनों के अंदर पड़े हुए चूहों को निकाल के ले जाते हैं। तो चौथी चीज़ ये है कि पड़ोसी है, रिश्तेदार है, दोस्त है, अजियत न दिया करें, अपने अपने इख्तलाफ राय करें। और पांचवी और लास्ट वन चीज़ जिसके बगैर अबदियत नहीं बनती वो ये है कि जिस तरह आज आप तशरीफ़ लाए हमारे वाजिद साहब के वालिद मरहूम की ताज़ियत के लिए, अभी एक अफसोस का मौका था। यहाँ अगर आप पुराने कपड़े पहन के आते, बगैर तीसरी के पहन के आते, कलफ लगा के ना आते, वेस्ट कोट मेरी तरह पहन के ना आते, करंडी पहन के ना आते तो भी गुजारा हो जाता। लेकिन आपने अपने आप को मैक्सिमम अपडेट किया कि वहाँ खान मिलेगा, मार मिलेगा, दोस्त मिलेगा, सदर मिलेगा, फलां फलां। तो आदमी ताज़ियत के मौके पर जिस तरह अपने आप को अपडेट करके आता है, अच्छा लिबास, अच्छा जूता, अच्छा कपड़ा, अच्छा मोबाइल लेके आता है, अल्लाह कहता है बंदों की खातिर संवरने वाले कभी कभी मेरे खातिर भी संवरा कर, अल्लाह की खातिर भी संवरा कर। जिस तरह लोगों के लिए अब यहाँ तशरीफ़ लाए तो कोई आदमी घर से निकलने लगा तो चाय गिर गई कमीज़ के ऊपर, बीवी कहेगी चाय दामन से धो लो, चूँकि लोग क्या कहेंगे, तो लोग कोशिश करते हैं कि अपने आप को दामन धो के निकलें। तो जिस तरह लोगों के लिए हम अपने ज़ाहिर को धोते हैं, देखो तो सिलवटों से भरी है तमाम रूह, सोचो तो एक शिकन भी नहीं है लिबास में। आसमान का खालिक जब ज़मीन पे देखता है तो लोगों के पैसे, कपड़े, जूते, प्राडो लैंड प्लाजो को नहीं देखता। वमल हयात दुनिया इल्ला मता। मेरी आखिरी बात सुन लें, इमाम असमई लुगत के, इमाम अरबी लुगत के, वो कहने की जब मैंने ये आयत पढ़ी वमल हयात दुनिया इल्ला मता, कि दुनिया एक मता है, तो मुझे पता न चला मता किसको कहते हैं। इतने में मैंने पूछा कि किससे मता का माना पूछो, उन्होंने कहा अरब बद्दू जो जांगली हैं उनसे पूछो। तो एक अरब बद्दुओं का काफिला ऊँटों पे सवार करो का मेरी बस्ती के करीब से गुजरा। मैंने कहा मेहरबानी करो, मेरे कुरान में अल्लाह ने कहा दुनिया मता है, तो मता किसको कहते हैं? उसने कहा हमारे हम सफ़र बन जाओ, फलां पहाड़ की वादी में हमने शाम करनी है, वहाँ तुम्हें बता देंगे। मैंने ऊँट लिया, साथ चला। शाम हुई तो उस काफिले की एक औरत ने मैले कुचैले बर्तन उठाए, धोया, कपड़ा जिस कपड़े से वो बर्तन धोए उसको पत्थर पे रखा, वापस आई तो एक कुत्ता उसी काफिले का चला और उसने कपड़े को उठाया, मुंह में दबाया और पहाड़ की जानिब भाग गया। तो कहने के जब वो कुत्ता उस कपड़े को लेके भागा तो उस काफिले की औरत ने बेसाख्ता कहा लोगो आओ, भागो भागो, कुत्ता मेरी मता लेके चला गया। तो मैंने कहा बीबी फिर कहो तुम क्या करो? उसने कहा तुम्हें जुमले की पड़ी और कुत्ता मेरी मता लेके भाग गया। मैंने कहा मता किसको कहते हैं? उसने कहा मेरे पुत्र मता सुब्बी नु आते हैं। सुब्बी जान दो, तो सारे इलाके लोग बैठे हो, कोई दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता ग्रुप नहीं बैठा, सारे जंग दे ग्रुप बैठे हो। सुब्बी जान दो, सुब्बी छोटे होंगे मामा गंदे बर्तनों साफ करने वास्ते जिस चीज़ नाल बर्तन धोंदे उन्हें सुब्बी आदे। अगर कोई बाल निके होंदे करोलियां कर दिया, सुब्बी नु चाह के मूँह पा लिया, माँ जेडी अहम मसरूफियत चो व्या, वो कुन्नी पका रही हो, बर्तन धो रही हो, स्टिचिंग कर रही, हर चीज़ छोड़ के भज के आना, बच्चे के मुँह पानी पावना, अंगुली पावनी, सुब्बी करनी कि बेटा अगर सुब्बी खा जाए गंदा हो जाए, मैदा खराब हो जाए। यकीन जानो अल्लाह कहता है कायनात की पूरी मखलूक़ात जितनी भी चीज़ें
चीज़ें पढ़ी हैं, अल्लाह के नज़दीक इनकी वक़्त एक सुबह से ज़्यादा भी नहीं है। वमल हयात दुनिया इल्ला मता, एक सुबह से ज़्यादा भी नहीं है। इसलिए जब लोग सुबह को दीवाना वार हलाल हराम की पहचान किए बगैर मुंह में डालते हैं कि रकबा मिलना चाहिए, ज़मीन मिलनी चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, इकबाल कहता है पूछा तकरार थी मुजारे व माल, आखिरी बात, तकरार थी मुजारे व मालिक में एक रोज़। एक दिन मालिक और मुजारे आपस में तकरार कर रहे थे। दोनों ये कह रहे थे मेरा माल है ज़मीन, दोनों कह रहे थे ये मरला ये एकड़ रकबा मेरा है। कहता था वो करे जो ज़रात उसी का खेत, मालिक कहता था, मुजारे कहता था जो मेहनत करता है खेत उसका होता है। कहता था ये कि अकल ठिकाने तेरी नहीं, ये कहता था पागल हो गया ज़मींदार कि ज़मीन मेरी है, तहसीलदार से पूछ, पटवारी से पूछ। इकबाल कहता है दोनों लड़ रहे थे, मुजारे कह रहा था मेरी है, मालिक कह रहा था मेरी। मैंने दोनों की बात नज़रअंदाज करके पूछा ज़मीन से मैंने, है किसका माल तू? ये कह रहा है मेरी, ये कह रहा है मेरी, तू बता। पूछा ज़मीन से मैंने, है किसका माल तू? कहने लगी मुझे तो है इस बात का यकीन, मालिक को या मुजारे शोरीदा हाल है, जो ज़ेर आसमां है वो धरती का माल है। मेरा और आपका कुछ भी नहीं है माँ सिवाय कफन की चादर के। शरीयत का हुक्म है पानी गर्म करके बेरी के पत्ते डालकर नीम गर्म करके गुसल दो, ताकि मसाम के अंदर छुपी हुई मैल भी कोई कब्र में लेके न जा सके। रिंग क्या, पाजेब क्या, कंगन क्या, कुछ भी नहीं बचता। इसलिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अल्लाह के पास जाना। अगर एक काम करके मर जाएं तो मौत नहीं कीमती हो जाएगी। वो ये है कि मरने से पहले पहले अबदियत को लेकर चलें। और अबदियत का खुलासा मैं समअप कर देता हूँ, यकीन दुरुस्त लेके चलें, 5 वक्त की नमाजें लेके चलें, रिज़्क़ हलाल लेके चलें, अल्लाह की मखलूक को अजियत न दे और बातिन को साफ़ करने की कोशिश करें। अल्लाह करीम मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अच्छा, ये जो ताख़ीर हो रही है इन हज़रात की वजह से हो रही है। मैं अपने आधे घंटे पे कायम था, इन हज़रात की वजह से हो रही है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कोशिश करें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अल्लाह के हुज़ूर जाना तो है ही। कोई दुनिया का इंसान ऐसा नहीं है जो अपने ज़ोर बाजू से मौत को बचा। इकबाल कहता है कि इंसानी ज़िंदगी क्या है, वो कहता है जिस तरह दीवार पे रखा हुआ चिराग होता है, हवा के दोष पे रखे हुए चिराग हैं हम, जो बुझ गए तो हवा से शिकायतें कैसी। दुनिया का कोई चिराग आंधियों से मुकाबला नहीं कर सकता। वो फिर कहते हैं ज़िंदगी क्या है कि शाख पे बैठे हुए पंछी, आप सारे देहाती हैं, पंछी परिंदे शाख पे कितनी देर बैठते हैं। फिर वो कहते हैं ज़िंदगी क्या है कि गुब्बारे के अंदर भरा हुए, एक गुब्बारे के अंदर हवा है। मैं अक्सर सुनाया करता हूँ कि एक दिन मैं अपने फैसलाबाद में कॉलेज से पढ़ा के घर आ रहा था यूनिवर्सिटी से, तो सामने देखा एक पठान साइकिल के हैंडल के साथ बड़े बड़े गोल गुब्बारे लेकर हवा में उड़ रहे थे। वो लेके खड़ा था। हमारे बचपन में छोटे छोटे गुब्बारे होते थे, वो 2-2.5 फुट के गुब्बारे मल्टी कलर्स। मुझे लगे अच्छे, मैंने गाड़ी पार्क की, डिवाइडर को अबूर किया, पठान के पास गया। मैंने कहा ये गुब्बारा कितने का है? उसने कहा 30 रुपए का। वो कहते हैं अल्लाह से इस तरह मांगो जिस तरह पठान ग्राहक से रेट मांगा करता है, तो अल्लाह से खोल के मांगा करो, यानी अल्लाह से इस तरह 2 टोक अंदाज में मांगो। मुझे पता चल गया कि 3 रुपए का होगा तो कोई 10 गुना ज़्यादा इनके फ़राइज़ मंसूबी में शामिल है कि अल्लाह से इस तरह खोल के मांगो जिस तरह पठान ग्राहक से रेट मांगता है। तो मैंने कहा ये कितने का है? 30 रुपए का। गुब्बारे का हुजम देखा, उसकी टाइटनेस देखी, उसके कलर देखे, तो मैंने कहा ये अच्छा है। मैंने कहा चलो ये 2 गुब्बारे मुझे दे दो पठान से। मैं कहा उसके हैंडल के ऊपर लटका हुआ एक शापर, उसमें उंगली के बराबर छोटे छोटे प्लास्टिक के गुब्बारे उसने वो निकाल के दिए। मैंने कहा ये 2 जो हवा में उड़ रहे हैं, कहने लगे हैं ये भी वही, लेकिन इनमें हवाएं भर गई। मैंने कहा भाई पठान होकर केड़ी गल कर गया। देख लो, कहने लगे प्रोफेसर साहब, मौलवी साहब, सारे गुब्बारे शुरू में इतने ही होते हैं, हवाएं भरती हैं तो इतने हो जाया करते हैं, वरना शुरू में सारे गुब्बारे जब निकलते हैं प्लास्टिक से तो छोटी छोटी जल में होती हैं। मैंने कहा देख लो, पठान ने कितनी बड़ी हकीकत की बात कर दी कि सारे गुब्बारे मौलवी साहब शुरू में इतने ही होते हैं, बाद में हवाएं भरती हैं, पैसे की, रकबे की, ओहदे की, खान की, मार की, तो ये डबल बोकी के पंप फिर गुब्बारों को फैला देते हैं, वरना शुरू में गुब्बारे सारे एक ऐसे ही होते हैं। अच्छा, मैंने गुब्बारे लिए तो उसमें हवा बड़ी तुन पर बवंजा थी, तेज़ हवा की हुई थी। मैंने कहा यार हवा इतनी क्यों भरी है? कहने कि ज़्यादा हवा ना भरें तो जल्दी फटते नहीं है। मुझे उस दिन अंदाज़ा हुआ कि जिन गुब्बारों में हवाएं ज़्यादा होती हैं वो छोटी छोटी बात पे फट जाया करते हैं, और जिन गुब्बारों में हवाएं कम होती हैं वो छोटी छोटी। तो मुझे कहने लगा जी ये गुब्बारे में हवा ज़्यादा भरते हैं ताकि जल्दी फटें। हमारे जंग कमार रियाज शायर है, वो कहता है दुनिया ज़िंदगी क्या है, वो कहता है गुड है। आपने ये जुमला सुना होगा, आप इस जुमले को दोहरा मुकम्मल कर लेंगे कि फलां बंदे दी अजकल गुड्डी बड़ी, अगली गल करो, फलां बंदे की गुड्डी अजकल बड़ी, तो फैसलाबाद चाहते हैं जिंदी गुड्डी चढ़ जाए उन्होंने पेचे, ये भी बोल पवो, कमले नहीं है, तुम्हें पता लग गया, जान दो। लेकिन चूंकि अपने तो जद पम दिए, फलां बंदे की गुड्डी बड़ी तो चढ़ी गुड्डी ने पेचे। अल्लाह अपनी गुड्डी के अलावा किसी की गुड्डी फ़ज़ा की वसतों में देर तक बर्दाश्त नहीं करता। मुमकिन नहीं तकदीर के चाक को करना रफू, सोजन तदबीर गो सारी उम्र सीती रहे। मैं और आप गुड्डे हैं, और मार रियाज कहता है कच्ची तेरी डोर वे गुड्डिया, ना ला एडा जोर वे गुड्डिया। वादी ढाक ते पींग झुटाइए, अपनी चाह औकात भुलाइए, तो जेड़ा वादी ढाक ते चढ़िया मुड़ो संगतां नाल न रलिया।
डोरी हिक दें टुट वैना है, तेरा सब कुछ लुट वैना है। तू आसमान तू ढासें गुड़िया, हथ पर आया आसें गुड़िया, तेरियां करसन लीरां लीरां, कोई ना आके देसी धीरां। तो कई कई फन्ने खान उडारी, भोग के टुर गए अपनी वारी, पैर मिट्टी विच धर गए गुड़िया, कीड़ियां दा ढिड भर गए गुड़िया। ऐ वक्ती रहन बसेरा, ना है तेरा ना है मेरा, ऐ टुरदा फिरदा डेरा, कल है तेरा अज है मेरा। ऐ वक्ती रियाज ठिकाना, इत्थे फेर न वल के आना, अजे भी वेले सोच बेसुरिया, हाली तेरा कुछ नहीं भुरिया। जद उठ वैसी पानी दाना, कम ना असी मुड़ पछताना। गुड़िया तेरे नक च नत्थे, जिंदा सिरा पराया हथे, तैनू मर्जी नाल नचाइंदे, तेरी नाच ते भंगड़े पैंदे, तैनू लारे झूठे देंदे, तुएं जाता हिन झूठे देंदे। हुण आखिरी शेर सुनाया दिल थाम के, जिहदे गुड्डे नू पेचा पै जांदा है तकदीर दा, मुड़ तकदीर दे पै पेचे नू इंसानी तदबीरां दूर नहीं कर सकदियां। मुमकिन गालिब कहता है मुमकिन नहीं तकदीर के चाक को करना रफू, सोजन तदबीर गो सारी उम्र सीती रहे। बुलंदियों पे उड़ने वाला गुड्डा जब पेचा पड़ जाता है, फिर वो पतंग की डोर कट जाती है, फिर पतंग का क्या हाल होता है आपको पता है। फिर पतंग आके किसी बर्तन में, छत पे, मकान पे गिरा होता है, तो पर पता है पतंग क्या कहता है जब पेचा पड़ जाए, फिर पता क्या कहता है, कहता है मैं ते हमू का गुल चिट्टा, पीले रंग ने धोखा देता। मैं ते हमू का गुल चिट्टा, पीले रंग ने धोखा देता। हर एक बंदे दे पीले रंग वखरे वखरे होंगे। थोड़ा पीला रंग है, मेरा पीला रंग है, पेचा तो नहीं पौना लगना मैनू भी है, डाना तुसी भी है, टुटना मैं भी है, गुबार दी हवा थोड़ी निकलनी मेरी निकलनी। इस तो पहले कि पेचे पवन कोशिश करिए, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अबदियत का ताज पहन के आओ, फिर जिस रूप में भी आओगे आसमान का खालिक समाइल पास के इस्तकबाल करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।